Myself Sonam Yadav. I am taking a topic on lateral earth pressure. Lateral earth pressure, today we will discuss about lateral earth pressure on soil. Lateral earth pressure is a pressure exerted by a soil on shoring system. Shoring system. Okay. In shoring system is a temporary structures constructed on a building. Okay. It is dependent on the earth pressure is dependent on the soil structure, interaction and movement of a soil. Movement on a soil. Basically, earth pressure is dependent on a soil structure, soil interaction and movement of on a soil. We will discuss about there are three types of earth pressures. There are three types of earth pressure. First is earth pressure at rest. Earth pressure at rest condition. Second one is active earth pressure. And third one is passive earth pressure. In the study of lateral earth pressure, there are three types of earth pressure. First is earth pressure at rest, second active earth pressure and third is passive earth pressure. In the study of earth pressure, first we discuss about the conditions. There are two types of conditions. First is geostatic condition and second one is hydrostatic condition. Geostatic condition. Geostatic means geo means soil, it is dependent on the soil, and hydrostatic, it is dependent on the fluid condition. In geostatic condition, we consider a soil element. First we consider a soil element. There are three types of stresses lies. First is horizontal stress, vertical stress and in x direction, in y direction and z direction. ये जो एलिमेंट है ये थ्री डायरेक्शंस में लाई कर रहे हैं. ठीक. We take a element in three direction. First is x direction, second is y direction and third one is z direction. In geostatic conditions, the stresses, horizontal stresses is equal to k into vertical stresses. It means जो horizontal stresses है वो coefficient of k is equal to coefficient of earth pressure. Coefficient of earth pressure K. Horizontal stresses is equal to K into sigma mu. This is a geostatic condition and we consider a element in surface water.
then the water element is react as a sigma H and sigma A. Sigma A is a horizontal stresses and sigma H is a vertical stresses. It means the sigma V is equal to sigma H. जब भी अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं कि जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इन सरफेस वाटर there is we have considered some element sigma V and sigma H. Sigma V and sigma H, all the water exerted the pressure in same amount. It means sigma V is equal to sigma H and sigma H is equal to K into sigma V. ठीक है. In geostatic condition we follow sigma H is equal to K into sigma V, and hydrostatic condition sigma V is equal to sigma H. ठीक है. There are when we study the earth pressures theory, there are three types of pressures: earth pressure at rest, active earth pressures and passive earth pressure. First we take earth pressure at rest. What is mean by earth pressure at rest? Earth pressure at rest, it means कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो रेस्ट कंडीशन में अप्लाई हो रहा है. वी हैव कंसिडर अ सॉइल और ए ग्राउंड. फ्रॉम द ग्राउंड z distance we consider a element of soil sigma H and sigma V. Earth pressure at rest condition, when we consider a ground and the soil element is considered from z distance from the ground, sigma H, sigma V. Sigma V. When soil is यहाँ पर फुल्ली सॉइल अवेलेबल है, बट वी एज्यूम कि अपन यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं. ठीक है. जब इस सॉइल में पर्टिकुलर सॉइल ग्राउंड सरफेस के नीचे जब आप फाउंडेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन एक एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे. जब एक्सकेवेशन स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन ड्रॉ करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, तो ये जो एक्सकेवेशन है यहाँ से सॉइल क्या होगा आपका पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा. तो ये जो सॉइल है जब पूरी तरह से एक्सकेवेट हो गया है तो यहाँ पर जो सॉइल का जो प्रेशर है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, सिग्मा एच सिग्मा एच. तो जितना भी जो सॉइल का प्रेशर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे. बट यदि आपने सॉइल को पूरी तरह से एक्सकेवेट कर दिया है, इट मीन्स यहाँ पे आपका पूरा सॉइल फील था, ठीक है. तो जो एलिमेंट पे जो प्रेशर्स अप्लाई हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर्स, वो सेम अमाउंट में था. जो यहाँ पर जो सॉइल अवेलेबल थी उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहा था फोर्स या स्ट्रेसेस अप्लाई कर रही थी. यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है. उस कंस्ट्रक्शन के कारण आपने यहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट किया. जब एक्सकेवेशन स्टार्ट किया तो यहाँ का जितना भी सॉइल था वो क्या हो गया, ट्रेंच, उसको ट्रेंच के फॉर्म में आ गया. जितना भी सॉइल था आपने बाहर डंप कर दिया. तो ये जो एलिमेंट है सॉइल एलिमेंट, यहाँ की जो स्ट्रेसेस थी अब क्या हो गई, वो स्ट्रेसेस नील हो गई, क्योंकि जो सॉइल का जो प्रेशर था वो क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल प्रेशर. सॉरी, सिग्मा एच सिग्मा वी
हॉरिजेंटल प्रेशर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नो सॉइल नो मूवमेंट, नो सॉइल नो मूवमेंट एंड देयर इज नो हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, जो सॉइल एलिमेंट है आपका, जब सॉइल पूरी तरह से फिल थी तो जो भी सॉइल का एलिमेंट है वो कौन सी कंडीशंस में है, स्टेबल कंडीशन में है। मतलब इट मीन्स कि सॉइल इज इट इन स्टेबल कंडीशन। बट जब आपने यहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट किया फाउंडेशन ड्रॉ करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए आपने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे एक्सकेवेशन करते गए जो सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अपनी जो स्ट्रेसेस है उसको जीरो दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो क्या हो गई, जीरो। मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये अब कौन सी कंडीशन में है, अनस्टेबल कंडीशन में। ठीक है, जब सॉइल पूरी तरह से फिल था तो सारे सॉइल के पार्टिकल्स थे वो उसको पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल कंडीशन में लाई कर रहे थे। और यहाँ पर जब आपने एक्सकेवेशन किया तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर एक्सकेवेशन के साइड्स में, वो जो सॉइल है वो कैसे लाई कर रही है, अनस्टेबल कंडीशन में। ठीक है, जब अपन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो जो कंडीशन है आपकी वो कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है। तो इस अनस्टेबल कंडीशन को स्टेबल बनाने के लिए हम एक रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। This is a ground, this is a foundation या excavation depth and this is a soil element. When we apply horizontal stresses and vertical stresses, there is no stresses because the excavation is formed. ठीक है, इस सॉइल एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए अपन यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करते हैं या रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि क्या होती है, रिटेनिंग वॉल और रिटेनिंग स्ट्रक्चर। रिटेनिंग वॉल मीन्स जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये एक वॉल है जो कि सारे सॉइल पार्टिकल्स को रिटेन कर रहा है या इसे यहाँ पर रोके रखा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो कि मे बी आरसीसी और स्टील का होता है। बट इन रिटेनिंग वॉल वी हैव यूज आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इट इज हैवी इन वेट। रिटेनिंग वॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत हैवी होता है वेट में, जिसके कारण क्या होता है, जितनी भी स्ट्रेसेस हो रही है वो अब किस फॉर्म में आएगी, हॉरिजेंटल प्रेशर के फॉर्म में। ये जो रिटेनिंग वॉल है ये क्या है, हैवी इन वेट, मतलब इसका जो वेट है ये बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जितने भी सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो अब क्या हो रहे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं। मतलब उसका जो अनबैलेंस या अनस्टेबल जो कंडीशन थी वो इस पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल के कारण क्या हो गई, स्टेबल कंडीशंस में आ गई है। इन सॉइल पार्टिकल्स को स्टेबल कंडीशंस में लाने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, जिसके कारण जो आपकी देयर इज, यहाँ पे क्या था, किसी भी टाइप का कोई हॉरिजेंटल, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन था, जिसके कारण फिगर 1 में वहां पे हमने यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं हो रही थी। लेकिन इस रिटेनिंग वॉल के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी सिग्मा एच स्ट्रेसेस लाई कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। देयर इज नो मूवमेंट इन सॉइल पार्टिकल, इन सॉइल इज दिस स्टेबल कंडीशंस। ठीक है,
we determine the coefficient of earth pressure at rest. It means ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है, और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस है सिग्मा एच के फॉर्म में है, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल स्ट्रेसेस वाई डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर यदि ये वेरी हैवी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई जो लेंथ है उसमें किसी भी टाइप का कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ जो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ये स्टेबल है। स्टेबल है इट मीन्स कि ये इसकी जो स्ट्रेन है वो क्या है, जीरो। स्ट्रेन इन एक्स इज जीरो। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, स्ट्रेन इक्वल टू जीरो, then sigma x by e minus mu sigma y by e minus mu sigma z by e. In x direction stresses is zero. There is no movement because of the retaining wall. Then we have considered epsilon x equal to 0, mu sigma y by e minus mu sigma z. sigma z is equal to जब अर्लियर अपन ने जियोस्टेटिक कंडीशंस पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा था कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड उस पर्टिकुलर प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो सिग्मा जेड कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन में जब स्ट्रेसेस डेवलप होगी तो वो किसके इक्वल होगी, हमेशा सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर वी पुट है सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, सिग्मा एक्स बाय ई। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई। यहाँ पर ई कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा वाई बाय ई। म्यू सिग्मा वाई बाय ई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई। 1 माइनस म्यू बाय म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाय म्यू इंटू सिग्मा एक्स। Earlier we have geostatic conditions. In geostatic condition, sigma h equal to k into sigma v. From geostatic condition, sigma h equal to k into sigma v. In y direction, we have vertical direction, and mu divided by 1 minus mu is x direction. It means horizontal direction. 1 minus mu by mu. Sigma h is equal to mu divided by 1 minus mu into sigma v. From equation 1 and equation 2, we have, from equation 1 and 2 we have k equal to mu divided by 1 minus mu, where k is equal to coefficient of earth pressure, at rest, or k naught.
K naught is equal to coefficient of earth pressure at rest condition. Mu divided by 1 minus mu. Epsilon x is equal to sigma x by E minus mu sigma y by E minus mu sigma z by E. Is this equation is from स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. जब भी अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रेंथ के लिए जो इक्वेशन है वो तीनों डायरेक्शंस के लिए डिराइव करते हैं. तो वो इक्वेशन मैंने डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से यूज़ किया है. एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 0. 0 क्यों हुआ है? क्योंकि ये रिजिड कंडीशन में है, तो जो जितनी भी स्ट्रेसेस है या मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा? नील होगा. इसलिए जो स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन क्या है? 0. यहाँ पे इसको 0 पुट किया. सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई म्यू सिग्मा एक्स बाय ई. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स कौन सी डायरेक्शन है? सिग्मा एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन और सिग्मा वी वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे उसको y को h पुट किया है और v को x को h और v को x को h हॉरिजेंटल डायरेक्शन और y वर्टिकल डायरेक्शन को पुट किया है. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट कैलकुलेट करना है तो k इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसको एक वो फॉर्मूला है एज पर जेकी 1944 वी हैव k नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस sin phi. ठीक है, there are two methods find out the coefficient of earth pressure at rest. K naught is equal to mu divided by 1 minus mu, and second one is K naught is equal to 1 minus sin phi. In K naught is equal to 1 minus sin phi, where phi is equal to angle of internal friction. We have two shear strength parameter. First is C and second is phi. Phi is a angle of internal friction or angle of shear resistance. ठीक है, mu, where mu is Poisson's ratio. Poisson's ratio. It is dependent on mu is equal to lateral stress upon, it is unitless. Where mu is unitless, then the coefficient of earth pressure at rest condition, it is also unitless. Okay, K naught की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस. ठीक है, देन फर्स्ट वी विल फाइंड आउट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर. सेकेंड एक्टिव अर्थ प्रेशर and third one is passive earth pressure. In this case, K naught is equal to mu divided by 1 minus mu and K naught is equal to 1 minus sin phi. We will discuss about active earth pressure. In active earth pressure, same condition we will apply. First we consider a soil element sigma h and sigma v. Horizontal stresses sigma h and vertical stresses is sigma v. This is ground surface and an element is considered from
from the ground at z distance. This is actually a stable condition. The soil is full with a dense, full density soil. ठीक है. When we start a construction, we also excavate a soil in particular depth. In this excavation, there is no horizontal stresses. It means the soil is in unstable condition. ठीक है. Then we start a construction of retaining wall. Somehow we will not construct a retaining wall. We will construct a sheet piles or lightweight structure. Sheet piles or lightweight structure. ठीक है. We assume it is a sheet pile. It is light in weight. We construct a sheet pile. Again, for understanding, this is a sheet pile. And all soil particles are present, are retained by sheet piles. There are many soil particles. Sheet pile retain all the particles. This is soil particles and this is sheet piles. In retaining wall there is heavy in weight, and but sheet piles it is light in weight. So there is some movement. We assume a movement in anti-clockwise direction. ठीक है. It is soil particle. We consider a soil particle as a cohesionless. All the particles are present in cohesionless soil. Okay. In cohesionless soil, there is no particle bonding is available. Cohesionless soil means sandy soil. It means sands are present in backfill. No particles correlations is in between. ठीक है. In active earth pressure, there is some movement from top of the surface of the ground, and sheet piles are tilt. Some soil particles are pressure applies on sheet piles, and the sheet piles is some angles tilt. There is some tilting in sheet piles. There are many soil particles are present. This pressure is called active stage. This stage is called active stage. Active stage means जब अपन ने रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड की थी फर्स्ट, जब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में, तो जहाँ पर रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड की थी तो रिटेनिंग वॉल हेवी इन वेट थी,
there is no movement, there is no horizontal stresses present, there is no movement, but we have provided sheet piles, there is some movement occur because of the weight of the structure. जो शीट पाइल है उसका जो वेट है वो क्या है, लाइट इन स्ट्रक्चर्स है, लाइट इन वेट है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर कुछ जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका जो प्रेशर है वो शीट पाइल को मूव कर रहा है, मूव होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव होने के कारण जो शीट पाइल है उसको टिल्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो एक 500 kg का कोई बार है, ठीक है, और यहां पर कोई है 100 kg, तो जो सॉइल पार्टिकल्स जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो 500 kg का जो बार है उस पे जो सॉइल पार्टिकल्स है वो मे बी कि उसको मूव नहीं कर पाए, बट जो 100 kg का जो है इसके कंपेयर में 500 kg के कंपेयर में यदि हम इसको मूव करेंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स है या शीट पाइल्स है या जो बार है वो इजीली मूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेट। तो यहाँ पर जो स्टेज है वो कौन सी है, एक्टिव स्टेज। एंड इसके अपोजिट जो स्टेट होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सॉइल को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इसके अपोजिट ये जो वॉल है वो क्या कर रही है, सॉइल पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स जो इस बार के पीछे फिल थे इस शीट पाइल के, तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर से आपको मूवमेंट अप्लाई कर रहे थे जिसके कारण को टिल्टिंग हुआ। टिल्टिंग होने के कारण जितने भी जो सॉइल पार्टिकल्स है वो वॉल को मूव कर रहे थे, और यहाँ पर जो वॉल है वो क्या कर रही है, सॉइल को मूव कर रही है। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो सॉइल के थ्रू वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसको बोल रहे हैं एक्टिव स्टेज, और जो वॉल के थ्रू सॉइल पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसको कंसिडर कर रहे हैं अपन पैसिव स्टेज। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, क्योंकि जितने भी यदि पार्टिकल्स है डेंस सॉइल, ये आपका कोई रिटेनिंग वॉल है या रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, सॉइल से फिल है। यदि डेंस सॉइल है तो डेंस सॉइल होगी तो पार्टिकल क्या होंगे, आपस में इंटरलॉक होंगे, बट यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, कोहेजन लेस। तो कोहेजन लेस सॉइल में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग है, सैंडी सॉइल है। तो उसके कारण क्या है, जो जितने भी पार्टिकल्स है जैसे ही टिल्टिंग होगी तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, उस ट्रेंच में, ये जो ट्रेंच है आपने जो बनाया है वो यहाँ पर आकर ट्रेंच में आने लगेंगे, ठीक है, इस टिल्टिंग के कारण। इसका मतलब जो भी सॉइल आपका जो रिटेन कर रहा था स्ट्रक्चर वो कौन सी स्टेट में आ गया है, अब एक्टिव स्टेट में, जिसके कारण वो कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और जो वॉल है वो क्या कर रही है, सॉइल को अबाउट डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो इसको बोल रहे हैं पैसिव स्टेट। क्लियर? फर्स्ट एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव स्टेज एंड पैसिव स्टेज क्लियर है। फर्स्ट एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन the wall is away from the structure, when the wall is away from the backfill, it is called active earth pressure. It is called active earth pressure. और second is passive earth pressure. Sorry, third one is passive. When the wall is toward from the backfill,
it is called passive earth pressure. Clear? When the wall is away from the backfill, ये जो सॉइल पार्टिकल्स आपके जो फिल है इसको अपन कंसिडर कर रहे हैं बैकफिल से, ठीक है। यदि आपका जो वॉल है वो क्या कर रहा है, सॉइल से अवे हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं अपन एक्टिव अर्थ प्रेशर, और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सॉइल तो उसको बोल रहे हैं, या बैकफिल उसको कंसिडर कर रहे हैं पैसिव स्टेट, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्लियर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्लियर। देन we determine the coefficient of active earth pressure and coefficient of passive earth pressure. कैसे फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर? फर्स्ट, जब कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में K नॉट इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एंड K नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई, ये आपने कौन सी कंडीशन में फाइंड आउट किया है, एट रेस्ट कंडीशन में। बट इन एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। सेम आपने एक ग्राउंड सरफेस कंसिडर किया है, यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस है सिग्मा एच और वर्टिकल स्ट्रेसेस है सिग्मा वी, ये दोनों डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तभी आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी होगी, ऑकर होगी स्टेबल कंडीशन, है ना। अब यहाँ पे अपन एक्सकेवेशन कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका सॉइल एक्टिव प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये डायग्राम क्लियर है, यहाँ पे मूवमेंट के कारण एक्टिव और ये पैसिव, ठीक है। एक्टिव को अपन पीए से कंसिडर करेंगे प्रेशर कोएफिशिएंट को KA और एंड पैसिव को कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर को KP से डिनोट करेंगे। क्लियर? इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर देयर इज सम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। when the soil particle is apply a force in sheet pile, then the vertical stresses is consider as a sigma 1 and horizontal stresses is considered as a sigma 3. Sigma V is equal to sigma 1 and sigma H equal to sigma 3. Sigma 1 is equal to measure principal stress, measure principal stresses, measure principal stress and minor principal stress. Sigma 3. जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा 1, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या कंसिडर किया अपन ने, सिग्मा 3, जो कि क्या है, फाइनल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। क्लियर? एंड इन पैसिव अर्थ प्रेशर सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा 3, सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा एच इज इक्वल टू sigma 1, sigma v is equal to sigma 3. Sigma v is equal to sigma 1 in active earth pressure. In passive earth pressure, sigma v is equal to sigma 3 and sigma h is equal to sigma 1. Sigma 1 is a major principal stress and sigma 3 is a minor principal stresses. ठीक है?
in shear strength, according to shear strength formula, sigma 1 is equal to sigma 3 tan square 45 plus 5 by 2 plus 2c tan 45 plus 5 by 2. क्लियर? जब भी अपन शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं. ये फॉर्मूला वहीं से मैंने ऑप्ट किया है. ठीक है. बट फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे अपन ने क्या कंसिडर किया है? सॉइल इज कोहेजन लेस. देन फॉर कोहेजन लेस सॉइल C इज इक्वल टू 0. ठीक है. सिग्मा मतलब कोहेजन लेस सॉइल या सैंडी सॉइल के लिए C की वैल्यू कितनी यूज करते हैं? C इक्वल टू 0. तो सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2. सिग्मा 1 फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कितना होगा? फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा V और सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा H. tan स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2. क्लियर? tan स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2. सिग्मा V इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको tan स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2 इंटू सिग्मा H. ठीक है. फर्स्ट जब अपन ने जियोस्टैटिक कंडीशन देखा था तो वहां पे क्या ऑब्जर्व किया था? सिग्मा V इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा H. ठीक है. सॉरी. तो यहाँ पे जो K है वो क्या हो जाएगा आपका? एक्टिव फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर sigma V is equal to K into sigma H. Then K is equal to tan square 45 plus 5 by 2 or 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. K for active earth pressure Ka, where K is equal to coefficient of active earth pressure, phi is equal to angle of internal friction. ठीक है. तो K is equal to यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप? Ka is equal to 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. Coefficient of active earth pressure is equal to 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया. यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय आएगा ना. 1 डिवाइडेड बाय K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2. देन 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई. K इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई. फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर, determination of coefficient of passive earth pressure. Passive earth pressure when soil is towards the direction of backfill, है ना, it is called passive earth pressure. Same equation, sigma 1 equal to sigma 3 tan square 45 plus 5 by 2 plus 2c tan 45 plus 5 by 2. ठीक है. c equal to 0, sigma 1 equal to sigma 3 tan square 45 plus 5 by 2. ठीक है. But in passive earth pressure case, sigma 1 is equal to minor principal stresses, and sigma 1 is equal to major principal stresses, sigma 3 equal to minor principal stresses. But sigma v जो vertical stresses है वो sigma 3 के इक्वल होगी
और जो हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस है वो सिग्मा 1 की इक्वल होगी। तो सिग्मा 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एच हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेसेस। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वी 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। देन सिग्मा एच इज इक्वल टू sigma v is equal to 1 divided by 10 square 45 plus 5/2 into sigma h. Clear? Sigma v is equal to 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. Sorry. Sigma h is equal to k into sigma v. Sigma h is equal to k for first equation and 10 square 45 plus 5/2 into sigma v. Sigma v is equal to sigma 3 and sigma h equal to sigma 1. So k is equal to 10 square 45 plus 5/2. It means 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. Clear? Sigma is horizontal pressure, sigma h horizontal stresses और इसको आप sigma h is equal to pressure at passive earth pressure p स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर वर्टिकल प्रेशर हॉरिजेंटल प्रेशर को सेम हॉरिजेंटल है बट एक्टिव है, तो एक्टिव प्रेशर को pa से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज k is equal to 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi and coefficient of passive earth pressure is 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi और k naught is equal to 1 minus sin phi. Is this coefficient of earth pressure at rest condition, coefficient of earth pressure at passive state, coefficient of earth pressure at active state. ठीक है, always Ka is less than K naught is less than Kp. Active earth pressure less at rest condition, medium and passive earth pressure greater. हमेशा जो Kp की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी। आप चेक कर सकते हैं phi इक्वल टू यदि अपन 30 रखते हैं, पुट phi इज इक्वल टू 30, देन एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, Kp इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 30 एंड 1 माइनस साइन 30। K naught is equal to 1 minus sin phi. ठीक है, K is equal to यदि phi equal to 30 डिग्री पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो Ka की वैल्यू कितनी आएगी, तो साइन 30 कितना होता है, इसकी टोटल वैल्यू 1/3। Kp कितना हो जाएगा, Kp is equal to 3 एंड 0.5, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 3। ठीक है, ये 1 ये हाफ है और ये 1/3 है। ठीक है, तो ऑलवेज K इज लेस होगा, ये मिडिल होगा और ये ग्रेटर होगा। इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपन K एंड Kp में। क्या रिलेशन होगा, K इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 5 और Kp इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय
1 minus sin phi. तो Ka and Kp, K into Kp is equal to always 1 और K is equal to 1 divided by Kp. ये हमेशा इसका inversely proportional. Coefficient of active earth pressure is inversely proportional to the coefficient of passive earth pressure. Clear? Okay. This is the types of earth pressure. Earth pressure at rest, earth pressure is active earth pressure, active earth pressure and passive earth pressure.